ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ کیا ہم واقعی ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ یہ سوال کافی گہرا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو یا قریبی لوگوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اصل میں انسان کے اندر کا جہاں کسی اور کے لیے پورا کھلا نہیں ہوتا ہے۔ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، ایسا کچھ جو وہ دنیا سے چھپاتا ہے، کبھی اپنے دکھ کو، کبھی اپنے ڈر کو، کبھی اپنی بہت ہی پرسنل خواہشات کو۔ اور چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مسکراہٹ کے پیچھے اپنے غم چھپا لیتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ایک مختلف چہرہ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سچا قصہ یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بھلے سالوں سال گزارے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کا اصل چہرہ ہمیں کبھی نظر ہی نہ آیا ہو۔ یہی زندگی کا ایک عجیب پہلو ہے، جو دکھائی دیتا ہے ضروری نہیں کہ وہی سچ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں لوری سواریز کی کہانی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں 31 دسمبر 1976 کے دن ایک ننھی سی گڑیا بچی پیدا ہوئی، اور جیسے ہی اس نے دنیا میں آنکھیں کھولی، اس کی ماں نے اسے اڈاپشن ایجنسی کے حوالے کر دیا۔ چند دن بعد فیلما اور ایرالڈو سواریز نامی میاں بیوی نے اسے گود لے لیا اور اس کا نام لوری کھے رکھا گیا۔ کچھ سال پہلے ہی فیلما اور ایرالڈو نے بیٹے پال کو اڈاپٹ کیا تھا۔ لوری کے آنے کے بعد ان کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ لوری کا بچپن سنہرا تھا۔ وہ ایک خوش مزاج، ہیپی گو لکی لڑکی تھی جسے سب پسند کرتے تھے۔ اسکول میں وہ پڑھائی میں دلچسپی لیتی تھی، ٹیچرز کی چہیتی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے پاس ہمیشہ 1000 سوالات ہوتے تھے، اسے سیکھنے کا شوق تھا۔ جب لوری 10 سال کی عمر کو پہنچی، والدین کا ڈیورس ہو گیا اور دونوں بچوں کی کسٹڈی فیلما کو مل گئی۔ کیونکہ اس کے سارے رشتہ دار اورم یوٹا کے رہنے والے تھے، فیلما نے بچوں کو لے کر اپنی فیملی کے قریب منتقل ہونا چاہا۔ جب پال نے والدین سے کیلیفورنیا میں رہنے کی ضد کی تو طے پایا گیا کہ پال باپ کے ساتھ رہے گا اور لوری ماں کے ساتھ۔ چھٹیوں میں دونوں بچے ماں باپ سے ملنے چلے جائیں گے۔ فیلما لوری کو لے کر اورم منتقل ہو گئی، جہاں دا چرچ آف جیزس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس کا بہت غلبہ تھا۔ وہ دونوں چرچ کے کاموں میں حصہ لیتی تھی، مشنری دوروں پر جاتی تھی۔ لوری 14 سال کی تھی جب وہ اورم ہائی اسکول کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیمپنگ پر گئی۔ کیمپنگ ٹرپ کے دوران اس نے مارک ہیکنگ نامی لڑکے کو نوٹس کیا، اور کیوں نہ کرتی، مارک بہت ہی مختلف تھا۔ لوری جو کہ عام طور پر شرمیلی تھی، اکثر چپ رہتی تھی، مارک اس کا بالکل اپوزٹ تھا۔ وہ پاپولر بچوں میں شامل تھا، مزاحیہ تھا، باتونی تھا، جوکس اور چچوری حرکتوں سے سب کی توجہ کا منتظر تھا۔ جب رات کو کیمپ فائر کے اطراف سب لڑکیاں اور لڑکے بیٹھے تھے، مارک نے کیمپ فائر سے جلتی ہوئی لکڑی کو ننگے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ظاہر سی بات ہے اس کی انگلیاں جل گئی، اور اس وقت لوری سب سے پہلے اس کی مدد کے لیے کھڑی ہوئی۔ فرسٹ ایڈ کے ڈبے سے اس نے سامان نکال کر اس کی مرہم پٹی کی۔ اس رات ان کی دوستی اور مضبوط تعلق کا آغاز ہوا۔ چند سال بعد جب وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے تو اس بات سے کوئی حیران نہیں ہوا۔ مارک کی فیملی بھی لیٹر ڈے سینٹس چرچ سے جڑی تھی۔ مارک 7 بچوں میں 5ویں نمبر پر تھا۔ اس کے والدین ماں جینٹ اور باپ ڈاکٹر ڈگلس ہیکنگ شہر کے شریف اور معزز لوگ مانے جاتے تھے۔ ہیکنگ فیملی کے بچے اپنے والدین کی طرح تعلیم یافتہ تھے۔ مارک کے 3 بڑے بہن بھائی ان کے باپ کی طرح ڈاکٹرز تھے، اور مارک بھی ان سب کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا۔ وہ بھی میڈیکل فیلڈ میں کام کرنے کی امید رکھتا تھا۔ اس میں لوری اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ لوری بھی اپنی تعلیم اور مستقبل کو لے کر سنجیدہ تھی۔ سن 1995 میں ہائی اسکول گریجویشن کے بعد اسے یونیورسٹی آف یوٹا کے بزنس پروگرام کی اسکالرشپ ملی تھی۔ سن 1997 میں لوری نے شاندار تعلیمی کارنامے یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ اسکالسٹک اچیومنٹ کے لیے یونیورسٹی آف یوٹا پریزیڈنٹس ایوارڈ حاصل کیا تھا۔
7 अगस्त 1999 लोरी और मार्क दोनों 22 साल के थे कि उन्होंने शादी कर ली। तकरीब बाउंटीफुल यूटा टेम्पल में तय पाई। 150 रिश्तेदारों दोस्तों ने शिरकत की। इस शादी से थेल्मा बेहद खुश थी। मार्क एक बेहतरीन दामाद था। वो केयरिंग था, मददगार था, सबकी देखभाल करता था, हर किसी को हंसाता था। वो थेल्मा के घर में हैंडीमैन के सारे काम करता था। शैंडिलियर का बल्ब बदलना, घर में पेंट करना, उसने बाग में स्प्रिंकल सिस्टम भी लगाया था। शादी के चंद महीने बाद ही लोरी ने सॉल्ट लेक सिटी में वेल्स फार्गो बैंक के लिए ट्रेडिंग असिस्टेंट की नौकरी शुरू की। मार्क ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अगले सालों में लोरी काम करती रही, मार्क पढ़ता रहा और पार्ट टाइम यूनिवर्सिटी के साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी करता रहा। मार्क ने मेडिकल स्कूल में दाखिले के लिए MCAT का एग्जाम दिया और लोरी की मां थेल्मा ने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के एसेज लिखने में उसकी काफी मदद की। मई 2004 आखिरकार मार्क ने साइकोलॉजी में ऑनर्स डिग्री मुकम्मल की और उसने सबको खुशखबरी सुनाई। उसका चैपल हिल की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के मेडिकल स्कूल में दाखिला हो गया था। मार्क का ख्वाब पूरा होने वाला था। मार्क की फैमिली ने उसकी कामयाबी के जश्न में डिनर रखा। पार्टी में मार्क ने सबको एक नया स्टेथोस्कोप दिखाया। उसने कहा, सितंबर में पढ़ाई शुरू होने से पहले मैं इस पर अपना नाम नक्श करवाऊंगा। सब चाहने वाले मार्क के लिए खुश थे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में दाखिले का मतलब था कि मार्क और लोरी को अपना शहर छोड़कर मुल्क के दूसरे कोने जाना था, फैमिली से तकरीबन 2100 मील दूर। पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे भी ये चंद सालों की दूरी थी, क्योंकि पढ़ाई मुकम्मल करके मार्क का इरादा वापस अपने शहर में सेटल होने का था। जून 2004 लोरी और मार्क कुछ दिनों के लिए चैपल हिल गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी के करीब अपार्टमेंट का बंदोबस्त किया। घर लौटकर लोरी ने अपनी नौकरी पर रेजिग्नेशन नोटिस देकर बताया कि 15 जुलाई उसका काम पर आखिरी दिन होगा। वेल्स फार्गो बैंक के कलीग्स ने लोरी के लिए फेयरवेल पार्टी रखी, क्योंकि वो सबको पसंद थी। उसके साथ काम करने वाले उसके जाने से उदास थे। कईयों ने लोरी को मोहब्बत से भरे कार्ड्स दिए और तोहफे पेश किए। 15 जुलाई 2004 लोरी ने घर में प्रेगनेंसी टेस्ट किया और मार्क के साथ नतीजा देखकर दोनों खुशी से चीख पड़े। लोरी ने अपनी नंद एलिजाबेथ, जो उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती थी, उसे भी पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाया। लोरी ने अपने वालिदैन और भाई को भी फोन करके ये खुशखबरी सुनाई। लोरी और मार्क की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। वो मुस्तकबिल के लिए पुरजोश थे, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जल्द उनके दरवाजे पर आफत दस्तक देने वाली थी। 4 दिन बाद 19 जुलाई 2004 मंडे सुबह के 10:07 मार्क ने सॉल्ट लेक सिटी पुलिस डिस्पैच को फोन किया और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर को बताया कि उसकी बीवी गायब हो गई थी। मार्क ने कहा, हम दोनों रोजाना सुबह सवेरे 5:30 बजे मेमोरी ग्रोव पार्क में जॉगिंग के लिए जाते हैं, लेकिन आज मैं गहरी नींद सो रहा था और लोरी अकेले चली गई। मैं 8 बजे के करीब उठा तो मैंने देखा कि लोरी घर पर नहीं थी। मैंने सोचा जॉगिंग से लौटकर वो काम पर चली गई होगी। मैंने उसके सेल फोन पर कॉल की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि वो काम में मसरूफ होगी। मैंने उसके ऑफिस कॉल की, फोन बजता गया और फिर लोरी के सुपरवाइजर ने फोन उठाकर बताया कि लोरी तो आज काम पर आई नहीं थी। पुलिस अफसरान ने मार्क को 24 घंटे बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने को कहा। क्योंकि पुलिस उस वक्त मदद करने के लिए तैयार नहीं थी, मार्क खुद मेमोरी ग्रोव पार्क भागा और वहां पहुंचकर उसे फौरन लोरी की गाड़ी पार्किंग लॉट में मिली, जहां वो आमतौर पर गाड़ी खड़ा करती थी और जॉगिंग पर जाती थी। गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन लोरी का कोई पता नहीं था। और तो और गाड़ी के अंदर और साइड मिरर्स पर खून लगा था। 10:49 मार्क ने दोबारा पुलिस से राब्ता किया। मशकूक तफसीलात सुनकर पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू की। डिटेक्टिव केली केंट
اور ڈیٹیکٹیو ٹیلر ویسٹ تحقیقات کے انچارج تھے۔ انہوں نے لوری کی گاڑی میں ایک اہم بات نوٹ کی۔ ڈرائیور کی سیٹ بالکل پیچھے ہوئی تھی، جیسے کہ لوری کے بجائے کسی اور نے گاڑی چلائی تھی، کسی لمبے آدمی نے گاڑی چلائی تھی، کیونکہ لوری تو چھوٹے قد کی تھی۔ لوری کو غائب ہوئے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ اس کے رشتہ دار، دوست اور احباب سب آ پہنچے تھے۔ میڈیا چینلز بھی وہاں موجود تھے۔ دیکھا گیا کہ بڑی تعداد میں لوری کے جاننے والے اور والنٹیئرز شہری اس کی تلاش میں حاضر ہو گئے تھے۔ جلد مسنگ پوسٹرز پرنٹ کیے گئے جن پر لوری کی تصویر اور اس کے حلیے کی تفصیلات لکھی تھیں۔ عمر 27 سال، قد 5 فٹ 4 انچ، وزن 100 پاؤنڈ۔ میموری گروو پارک اور سٹی کریک کینین کے آس پاس سرچ ٹیمز روانہ کی گئیں۔ شہریوں نے پیدل، بائک پر، گھوڑوں پر لوری کو ڈھونڈنا چاہا۔ پولیس ہیلی کاپٹرز اور K9 کتے بھی استعمال کیے گئے۔ تلاش کے دوران مارک آگے آگے تھا۔ کبھی وہ پریشان حال نظر آتا تو کبھی بہت ہی ایموشنل۔ مارک نے لوکل ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا۔ روتے ہوئے اس نے خاص طور پر پبلک سے التجا کی کہ وہ تلاش میں مدد کریں۔ Can I just make one plea? Everybody, anybody who can come, please come tomorrow morning. I don't think they're going to let the volunteers up there tonight, but we're going to start at 6:30 tomorrow morning, and anybody who can possibly, if you can make it, please come. That's all. لوری کے لاپتہ ہونے کے 6 گھنٹے بعد ڈیٹیکٹیو کینٹ اور ڈیٹیکٹیو ویسٹ نے لوری اور مارک کے گھر کی تلاشی لی۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی ڈیٹیکٹیوز نے غور کیا کہ گھر میں جگہ جگہ سامان سے بھرے کارڈ بورڈ باکسز رکھے تھے۔ مارک نے بتایا کہ انہوں نے نارتھ کیرولائنا منتقل ہونے کے لیے پیکنگ شروع کر دی تھی۔ ڈیٹیکٹیو کینٹ نے لیونگ روم کا جائزہ لیا تو اسے لوری کا لال رنگ کا پرس نظر آیا۔ اسے پرس دیکھ کر حیرت ہوئی، کیونکہ عام طور پر عورتیں باہر جاتے ہوئے اپنا پرس ضرور لے کر جاتی ہیں۔ پرس کھولنے پر اور بھی تعجب ہوا۔ پرس میں والیٹ، پیسے، شناختی کارڈ، ڈرائیورز لائسنس سب تھے، ساتھ میں لوری کی گاڑی کی چابی بھی۔ اگر لوری اپنی گاڑی چلا کر پارک تک گئی تھی تو اس کی چابی اس کے پرس میں کیوں تھی؟ اس کے بعد ڈیٹیکٹیو کینٹ کی نظر ایک پھولوں سے بھرے بڑے گلدان پر پڑی جس پر ابھی بھی کارڈ لگا تھا۔ پھول لوری کے نام تھے، مارک کی طرف سے۔ ڈیٹیکٹیو کے دل میں خیال آیا، مردوں کے پاس عموماً اپنی بیوی کو پھول دینے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، I love you کہنے یا I'm sorry کہنے، اور اکثر I'm sorry کا گلدستہ زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ پھر ڈیٹیکٹیوز بیڈ روم میں گئے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر جیولری باکس رکھا تھا جس میں لوری کی شادی کی ڈائمنڈ انگوٹھی تھی۔ بیڈ پر چڑی کمبل ہٹائی گئی تو نئی چادر نظر آئی۔ چادر اتنی نئی تھی کہ اس پر ابھی تک فولڈنگ کی سلوٹیں تھیں، جیسے نئی پیکیجنگ سے نکلی ہوئی چادر پر ہوتی ہے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی اس چادر پر سویا تھا، اور جب ڈیٹیکٹیو کینٹ نے قریب سے جائزہ لیا تو اسے بیڈ کے ہیڈ بورڈ پر خون کے باریک چھوٹے چھوٹے قطرے اور چھینٹے دکھائی دیے۔ ڈیٹیکٹیو ویسٹ نے سائیڈ ٹیبل کی دراز کھولی تو ایک ہنٹنگ نائف ملی جس پر سوکھا ہوا خون لگا تھا۔ ڈیٹیکٹیو نے چاقو مارک کو دکھایا تو اس نے فوراً کہا، یہ چاقو میں کچھ ہفتے پہلے شکار پہ لے کر گیا تھا اور ہرن کا گوشت میں نے اس سے کاٹا تھا۔ ڈیٹیکٹیو نے اپارٹمنٹ کے باتھ روم کا رخ کیا جہاں کیمیکلز کی تیز بدبو آ رہی تھی۔ بیتھ ٹب بہت صاف تھا، جیسے کسی نے کچھ دیر پہلے ہی اسے بلیچ سے صاف کیا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے دیکھا کہ اپارٹمنٹ کے گاربیج کین سب خالی تھے تو انہوں نے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے پیچھے ڈمپسٹر میں جھانکا۔ ڈمپسٹر خالی تھا سوائے بیڈ شیٹس اور 2 تکیوں کی پیکیجنگ کے۔ پیکیجنگ پر تصویر لوری اور مارک کے بستر پر چڑی چادر سے میچ کرتی تھی۔ افسران نے مارک سے پوچھا، بلڈنگ کے ڈمپسٹرز کب خالی ہوتے ہیں؟ مارک نے بلا جھجک کہا، یہ والا ہر منڈے کی صبح کو خالی ہوتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو کینٹ نے یہ جواب سنا اور اس نے اپنے پارٹنر کو سائیڈ میں لے کر کہا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس نے لوری کو قتل کر کے اس کی لاش ڈمپسٹر میں پھینکی ہے۔
डिटेक्टिव वेस्ट ने उसे समझाया कि जल्दबाजी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी, उन्हें होशियारी से सबूत जमा करने थे। मार्क को ऑफिशियल पूछगछ के लिए थाने ले जाया गया। उस वक्त लोरी को गायब हुए 10 घंटे गुजर चुके थे। इंटरोगेशन रूम में मार्क के साथ डिटेक्टिव केली कैंट ने दोस्ताना तरीके से सवालात किए। उसने पूछा, लोरी के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा था? मार्क ने कहा, हम बहुत प्यार से रहते थे, बहुत खुश थे। मेरा नॉर्थ कैरोलिना की यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है। लोरी मेरी खुशी में खुश थी। डिटेक्टिव ने पूछा, Mark, what are you specializing in? And he says, oncology. I said, I don't mean to sound dumb, but how do you spell that? And he couldn't spell it. So, okay, there's a problem here. तुम कौन सी स्पेशलाइजेशन करोगे? मार्क ने कहा, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर ट्रीटमेंट का डॉक्टर। डिटेक्टिव जो अपनी डायरी में नोट्स लिख रही थी, उसने कहा, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, लेकिन इस लफ्ज की स्पेलिंग क्या है? मार्क उस लफ्ज को सही तरह से स्पेल नहीं कर सका, तो डिटेक्टिव केंट ने सोचा, ओके, ये तो एक मसला है। डिटेक्टिव ने गौर किया कि मार्क अपनी बीवी के बारे में बात करते हुए रो रहा था, लेकिन उसका रोना बहुत फीका था। जब इंसान सही का रोता है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, नाक से पानी बहता है। डिटेक्टिव को लगा कि मार्क सिर्फ रोने की एक्टिंग कर रहा था। इसके बाद मार्क से उसकी गाड़ी की तलाशी करने की इजाजत मांगी गई। डिटेक्टिव्स ने उसके लाल ट्रक का काफी देर तक जायजा लिया, लेकिन कोई मशकूक चीज नहीं मिली। इत्तेफाक से डिटेक्टिव केंट की नजर गाड़ी की सीट के नीचे येलो पेजेस फोन बुक पर पड़ी। उसने किताब के सफ़े खोलकर देखे तो सफ़ों के बीच छुपी 2 रसीद्स मिली, जो उसी दिन की खरीदारी की थी, यानी कि 19 जुलाई 10 बजे के करीब मार्क ने ब्रैडली स्लीप नामी दुकान से एक मैट्रेस और 2 मेमोरी फोम तकिए खरीदे थे। क्योंकि मार्क वहीं पास खड़ा था, डिटेक्टिव केंट ने उसे रसीद दिखाई और कहा, इसकी वजाहत दो, एक्सप्लेन दिस। मार्क ने कहा, हाल में लोरी की मेंस्ट्रुएशन के दौरान मैट्रेस पर खून लग गया था और वो काफ़ी शर्मिंदा थी। वो चाहती थी कि नॉर्थ कैरोलिना जाने से पहले हम मैट्रेस बदल लें। अफसरान ने मार्क को शकी नज़रों से देखा। लोरी 6 हफ्ते से प्रेग्नेंट थी, तो मेंस्ट्रुएशन का सवाल ही नहीं था। और तो और आम लोग अगर मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने में मुंतकिल होते हैं तो वो कम से कम सामान उठाकर ले जाना चाहते हैं। अगर मैट्रेस खरीदना ही था तो बेहतर होता कि नॉर्थ कैरोलिना जाकर खरीद लेते, ना कि यूटा में खरीद कर उसे उठाकर वहां ले जाते। जब डिटेक्टिव केंट ने इसका जिक्र किया तो मार्क का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, आपको लगता है कि मैंने उसे कत्ल किया है? डिटेक्टिव केंट ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे लगता नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमने ही उसे मारा है और मैं इसे साबित करूंगी। मार्क से कहा गया कि वो किसी रिश्तेदार के पास जाकर रह ले, क्योंकि उसका अपार्टमेंट अब क्राइम सीन बन चुका था। 20 जुलाई 2004 लोरी की गुमशुदगी के दूसरे दिन 1200 वॉलंटियर्स ने तलाश जारी रखी। लोरी की मां सेल्मा ने पब्लिक से मुखातिब होते हुए कहा, Because my baby is still out there somewhere. Help us search. मेरी बेबी अभी भी कहीं है, उसे ढूंढने में मदद करें। लोरी और मार्क की फैमिलीज को पुलिस ने आगाह किया कि उनका शक मार्क पर था, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन सब को लग रहा था कि पुलिस अफसरान मार्क को अपना टारगेट बनाकर वक्त जाया कर रहे थे। उनके मुताबिक किसी ने लोरी को अगवा कर लिया था, या लोरी कहीं गिर गई थी, जख्मी थी, बेहोश थी और उसे मदद की जरूरत थी। डिटेक्टिव्स का मुख्तलिफ नजरिया था। डिटेक्टिव केंट को यकीन था कि मार्क लोरी का कातिल था और मुमकिन था कि उसने लोरी की लाश शहर के किसी डंपस्टर में फेंक दी थी। सबसे पहले डिटेक्टिव्स ने लैटर डे सेंट्स चर्च का रुख किया, जहां मार्क और लोरी जाया करते थे। चर्च के पीछे डंपस्टर था जो खाली नहीं किया गया था। डंपस्टर में एक क्वीन साइज मैट्रेस था जिसका ऊपर का हिस्सा काटा गया था। मैट्रेस लोरी और मार्क के बेडरूम के बॉक्स स्प्रिंग से मैच करता था। इस दरियाफ्त के कुछ ही देर बाद डिटेक्टिव केंट को एक हैरान कुन फोन कॉल मौसूल हुई शहर के दूसरे पुलिस स्टेशन से।
ऑफिसर ने बताया कि चेस स्वीट नामी होटल वालों ने 911 डायल करके पुलिस बुलवाई थी क्योंकि उनका एक ग्राहक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जब पुलिस अफसरान होटल पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि मार्क हैकिंग अपनी सैंडल्स के अलावा कुछ नहीं पहना हुआ था, पूरा नंगा हुआ था, बहकी बातें कर रहा था, फुदक कर गा रहा था, नाच रहा था। मार्क को उसी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहां वो काम करता था। डिटेक्टिव्स को अंदेशा था कि ये मार्क की चाल थी, वो पागलपन की एक्टिंग करके मजीद पूछगछ से बच रहा था। अलबत्ता तफ्तीश जारी रही। डिटेक्टिव्स को लोरी और मार्क के अपार्टमेंट से एक लिफाफा मिला जिस पर मार्क का नाम लिखा था। अंदर एक खत था। लोरी अपने शौहर से मुखातिब हो रही थी और कह रही थी, मुझे काम से घर आने से नफरत हो गई है क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में आकर तकलीफ होती है। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ लेकिन इन हालात में नहीं। अगर कोई तब्दीली नहीं आई तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी तस्वुर नहीं कर सकती। शिकायतों से भरा खत इशारा कर रहा था कि उनके बीच मसले थे और लोरी डिवोर्स का सोच रही थी। लोरी की चंद कोलीग्स ने भी इस बात की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई फ्राइडे के दिन लोरी की गुमशुदगी से 3 दिन पहले लोरी ऑफिस में किसी से काफी देर तक फोन पर बात कर रही थी और फिर वो फूट कर रोने लगी थी। सारा दिन उसका मूड ऑफ था, वो बेहद परेशान लग रही थी और वो उस दिन जल्दी छुट्टी करके घर चली गई थी। डिटेक्टिव्स जानना चाहते थे कि उस दिन लोरी किस से बात कर रही थी और गुफ्तगू में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो इतना रंजीदा हो गई थी। उन्होंने लोरी का फोन रिकॉर्ड चेक किया। पता चला कि लोरी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से राब्ते में थी। यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि पहले लोरी ने मेडिकल स्कूल वालों से फाइनेंशियल एड के बारे में सवाल किए थे। फीस में मदद के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका वो पूछ रही थी। उसने अपने शौहर का हवाला दिया था, बताया था कि उसका मेडिकल स्कूल में दाखिला हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने नाम चेक किया लेकिन ये नाम उनके सिस्टम में नहीं था। उन्होंने लोरी को बताया कि इस नाम का कोई भी स्टूडेंट मेडिकल स्कूल में एक्सेप्ट नहीं हुआ था। इस कॉल के अगले दिन लोरी ने दोबारा यूनिवर्सिटी को फोन किया था और कहा था, मेरा शौहर कह रहा है कि आपको ज़रूर गलतफहमी हुई है, कोई मसला हुआ है, घपला हुआ है और उसे पता चला है कि आपका सिस्टम ख़राब हो गया था, कोई कंप्यूटर ग्लिच हो गई होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने जवाब देने की मोहलत मांगी और लोरी का फ़ोन नंबर नोट कर लिया। लोरी की गुमशुदगी से 3 दिन पहले फ्राइडे को यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने लोरी को फ़ोन किया था जब वो अपने ऑफिस में थी। एडमिन ने कहा था, हमने सारे डेटाबेस चेक कर लिए, ऐसा कोई स्टूडेंट यहाँ रजिस्टर नहीं है, उसकी एप्लीकेशन तक नहीं है। यही बात थी जिसे सुनकर लोरी रो पड़ी थी और उसके कलीग्स ने उसे रोते हुए देख लिया था। इसके बाद डिटेक्टिव्स को एक अहम एविडेंस मिला। लोरी और मार्क की अपार्टमेंट बिल्डिंग के करीब एक कन्वीनियंस स्टोर था। दुकान में काम करने वाले एरिक होलमैन ने बताया कि 18 जुलाई की रात 9:45 के आसपास मार्क अपनी बीवी के साथ आया था। उनके बीच बहुत सर्द माहौल था, वो आपस में बात नहीं कर रहे थे। लोरी का चेहरा संजीदा था। मार्क ने चिप्स और सोडा ड्रिंक्स खरीदी थी। फिर उसी रात कुछ घंटे बाद 1:18 पर मार्क दोबारा दुकान में आया था। इस दफा वो अकेला था और उसने सिगरेट्स खरीदी थी। वो बार बार अपनी उंगलियों को देख रहा था। एरिक ने अफसरान से कहा, मार्क हमारा रेगुलर कस्टमर था, दिन में कई बार हॉट डॉग्स चिप्स लेने आता था, सिगरेट्स खरीद कर दुकान के बाहर खड़े होकर पीता था। वो आराम से ठीठी ठाठा करता था, काफी वक्त यहाँ गुजारता था। मार्क ने हम सबको बताया था कि वो एक मशहूर साइकाइट्रिस्ट था। दोस्तों, साइकाइट्रिस्ट होना तो दूर की बात थी, डिटेक्टिव्स ने पता लगाया कि मार्क हैकिंग ने बैचलर्स की डिग्री तक मुकम्मल नहीं की थी। उसके पास सिर्फ हाई स्कूल डिग्री थी। 24 जुलाई 2004 केस में धमाका नुमा इंकशाफ हुआ। उस दिन मार्क के बड़े भाई लांस और स्कॉट उससे मिलने हॉस्पिटल के साइकियाट्रिक वार्ड तक गए और उन्होंने भाई से इल्तिजा की। उन्होंने कहा, प्लीज बता दो कि लोरी के साथ क्या हुआ है। सब फिक्रमंद हैं, उसके वालिदैन का बुरा हाल है, हमारे वालिदैन भी परेशान हैं। सच बोलने का वक्त आ गया है। मार्क ने अपना सर झुकाया और कहा, मैंने उसे मार दिया। लोरी जिंदा नहीं है,
पुलिस का शक सही था, मैंने उसे डंपस्टर में फेंक दिया था। अगले दिन लैंस और स्कॉट ने डिटेक्टिव से राब्ता किया और उन्हें मार्क के इकरार जुर्म का बता दिया। अफसरान ने तमाम सर्च पार्टीज और वॉलंटियर्स को घर भेज दिया। जरा सोचिए, कई दिनों से पुलिस पेट्रोल ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स और आप और मेरे जैसे आम शहरी सब लोरी को ढूंढने में लगे थे। उनका वक्त, उनकी मेहनत, वो भी जुलाई के महीने में सख्त गर्मी के दिनों में, गवर्नमेंट का पैसा यानी कि टैक्स पेयर्स का पैसा, ये सब जाया हो गया था। और मार्क जो कातिल था, हकीकत जानते हुए भी टीवी में पब्लिक से रोते हुए मदद की भीख मांग रहा था। डिस्गस्टिंग आदमी, इसकी बेशर्मी की तो इंतहा नहीं थी। 2 अगस्त 2004 मार्क को बीवी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। जमानत की रकम यानी कि बेल की कीमत $1 मिलियन रखी गई थी। जिंदा लोरी की तलाश तो रुक गई थी, लेकिन अब उसकी लाश को ढूंढने की कोशिश शुरू हो गई थी। सॉल्ट लेक काउंटी लैंडफिल में, जहां शहर का कचरा कूड़ा डाला जाता था। अफसरान को उम्मीद थी कि 1 माह के अंदर अंदर वो लोरी को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इससे काफी ज्यादा वक्त लगा। 30 से 40 फुट से ज्यादा गहरा और फुटबॉल के 2 मैदानों से ज्यादा लंबी जगह थी। सर्च पार्टीज में वॉलंटियर्स, पुलिस अफसरान, फायर फाइटर्स, रेस्क्यू टीम के मेंबरान शामिल थे। उन्होंने एवरेज में हफ्ते में 4 दिन रोजाना के 11 घंटे कमर तोड़ काम किया। गंदे कीड़े मकोड़ों से भरे बदबूदार सड़े हुए कचरे के ढेरों में बेलचे, पिच फोर्क्स और कभी हाथों से टटोलने के 3 माह बाद किसी एक को एक गार्बेज की थैली मिली, जिसमें घुंघराले कर्ली ब्राउन बाल थे और एक टूटा हुआ जबड़ा और दांत। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और उस जगह की तफसीली छानबीन की गई। तकरीबन 15 पाउंड का गोश्त, खाल और हड्डियां मिली। DNA टेस्ट से वाज़ेह हुआ कि ये वाकई 27 साला लोरी सुआरेस के जिस्म के टुकड़े थे। अप्रैल 2005 मार्क हैकिंग का मुकदमा शुरू होने को था कि उसने अदालत का सामना करने के बजाय फर्स्ट डिग्री मर्डर का इकरार किया और आखिरकार पता चल गया कि लोरी के साथ उस रात क्या हुआ था। फ्राइडे 16 जुलाई को लोरी को मालूम हो गया था कि उसका शौहर सालों से झूठ पे झूठ बोलते आ रहा था। वो एक मेहनती स्टूडेंट नहीं था, उसका दाखिला मेडिकल स्कूल में नहीं हुआ था। पहली बार जब सवाल उठा था तो मार्क ने बहाना कर दिया था कि यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर में कोई खराबी हो गई होगी, कोई ग्लिच होगा, लेकिन लोरी बेवकूफ़ नहीं थी। 18 जुलाई संडे की रात लोरी और मार्क दुकान से खरीदारी करने गए। घर आने के बाद लोरी ने मार्क का सामना किया और कहा, मैंने तुम्हारी पढ़ाई की खातिर नौकरी पर इस्तीफा दे दिया। मैं फैमिली को छोड़कर मीलों दूर जाने के लिए तैयार थी और तुम हम सब की आंखों में धूल झोंक रहे थे। तुम्हें सबको सच बताना होगा वरना मैं सबको बता दूंगी। मार्क और लोरी के बीच काफी बहस हुई और फिर लोरी तंग आकर अपने कमरे में चली गई। मार्क दूसरे कमरे में वीडियो गेम्स खेलने लगा। लोरी ने मार्क के नाम खत लिखा और लिफाफे में बंद करके बुक केस में रख दिया। फिर वो सोने चली गई। मार्क चंद घंटों तक वीडियो गेम्स खेलता रहा, लेकिन उसका दिमाग चालू था। वो 2 दिन से सोच रहा था कि लोरी को कैसे चुप करवाना था, क्योंकि सच बोलने का तो सवाल ही नहीं था। वो सबके सामने जलील नहीं होना चाहता था, अपने वालिदैन को मायूस नहीं करना चाहता था। मार्क ने क्लोजेट से अपनी पुरानी 22 कैलिबर हंटिंग राइफल निकाली और बेडरूम में जाकर वो लोरी के सिराने खड़े हो गया। लोरी सो रही थी। मार्क ने बंदूक लोरी के सर पर रखी और गोली चला दी। लोरी हमेशा के लिए चुप हो गई, लेकिन अब मार्क के पास एक और मसला खड़ा था, लोरी की लाश के साथ क्या करना है। मगर पहले तो मार्क को सिगरेट की हुक्की हुई। उसने सोचा लोरी मर गई है, अब छुप छुप कर सिगरेट्स पीने की ज़रूरत ही नहीं, डट कर आराम से घर में सिगरेट पीऊंगा। मार्क सिगरेट खरीदने दुकान गया। जब तक वो वापस आया तो उसने देखा कि लोरी का खून मैट्रेस में जब्स हो चुका था। मार्क ने उसकी लाश उठाकर खालीन पर रखी, बेड से तकिए चादर उतार कर लोरी के ऊपर फेंक दिए। फिर उसने अपनी हंटिंग नाइफ के जरिए मैट्रेस के ऊपर का हिस्सा काटा
اور وہ بھی لوری کے اوپر رکھ دیا۔ ان ساری چیزوں سمیت اس نے لوری کو قالین میں لپیٹا اور قالین اٹھا کر لوری کی گاڑی میں رکھ آیا۔ اس نے پھر میٹرس اٹھایا اور لوری کی گاڑی کے اوپر باندھ دیا۔ سب سے پہلے وہ لیٹر ڈے سینٹس چرچ کے پیچھے ڈمپسٹر میں میٹرس پھینکنے گیا اور پھر یونیورسٹی آف یوٹا کے ڈمپسٹر تک گیا، جہاں اس نے اپنی پریگننٹ بیوی کی لاش ایسے پھینک دی جیسے ہم پرانا بسیدہ کپڑا یا گندا کچرا پھینک آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ میموری گروو پارک تک گیا۔ اس نے لوری کی گاڑی اسی میدان میں پارک کی جہاں لوری اکثر گاڑی کھڑی کرتی تھی، لیکن وہ ڈرائیور کی سیٹ اور آئینے واپس اپنی جگہ پر رکھنا بھول گیا۔ مارک بھاگتے ہوئے گھر واپس آیا۔ اس نے صفائی کی، خون کے چھینٹے صاف کیے، شاور میں جا کر نہایا دھویا اور پھر بیتھ ٹب کو بلیچ سے صاف کیا۔ صبح ہوتے ہی بیوی کی گمشدگی کا ناٹک تو کرنا تھا، لیکن ساتھ میں نئے تکیے، چادریں اور میٹرس بھی خریدنا تھا۔ 6 جون 2005 مارک ہیکنگ کو جج نے کم از کم 6 سال سے لے کر عمر قید کی سزا سنائی۔ اس سزا کو سن کر یوٹا کے شہریوں نے خوب آواز اٹھائی، کم از کم 6 سال، اتنے بڑے جرم کی اتنی چھوٹی سزا۔ عوام کی ناراضگی کا خیال رکھتے ہوئے یوٹا کی لیجسلیچر نے بل 102 نافذ کیا، جس میں فرسٹ ڈگری قتل کی سزا کم از کم 15 سال سے لے کر عمر قید کر دی گئی۔ مارک ہیکنگ سن 2034 سے پہلے پرول کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ فیلما سواریز نے میڈیا میں یہ کہا ہے، میں جانتی ہوں کہ ایک دن مارک کو اصلی جج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا جو سب جانتا ہے، اس دن مارک کو اصلی سزا ملے گی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوری کی نظروں میں مارک کو ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ مارک محنت سے کوئی بھی معمولی کام کرتا تو وہ پھر بھی خوش رہتی، کیونکہ وہ مارک سے سچی محبت کرتی تھی۔ کاش مارک کو اس کی محبت کی قدر ہوتی۔ دوستوں، یہ تھی لوری سواریز کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ